When human mind comes under constraint, it works the best. और एक मैं सिर्फ मिसाल व्यूअर्स के लिए देता हूँ. जब उनसे पूछते थे कि नानी या दादी को भाई क्या नाम रखें, तो कहते नाम ऐसा रखो जो किसी का ना हो. बच्चा पैदा होता है, चलने लगता है, अम्मा अब्बा कहते हैं वो करो जो मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर. बहुत सिंपल रूल है. जब तुम ग्रो कर रहे थे, तुम्हें अपने बॉसेस की बड़ी सारी चीजें नहीं पसंद थी, तो अगर तुम्हें नहीं पसंद होंगी ना, तो तुम्हारे लोगों को भी नहीं पसंद. वो ना करो. नो मिस्टेक इज fatal. Doing the same thing that we used to do in the 70s and the 80s and the 90s, it's downright idiotic. Now the skill which is becoming lot more important is back to engineering. You got to understand 240 मिलियन लोग बाहर नहीं जा सकते. उन्होंने इधर ही रहना, जो मर्जी कर लें इधर. This youth is very different. It's difficult to accept that you can learn from someone who's younger than you. Except that youth knows more than you. Many youngsters would be interested कि how to stand out if recruiters के सामने, since you are part of the corporate world, so किस तरह stand out करें. लेकिन ऊपर जाने के लिए वो सीढ़ियाँ चढ़नी, और सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा सब्र भी कर. 240 मिलियन मुल्क में आपको हजारों में एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो स्केल कर. Assalamu alaikum. I'm Ariba Mazhar and I welcome you all to another exciting episode of Amped Up, powered by ENA. Today's episode is truly special because the guest that I have with me today is an epitome of an all-rounder, excelling in multiple fields. You name it and you'll find him leading from the forefront, be it entrepreneurship, counseling, mentoring, and obviously the corporate world. What inspires me about him is that he's not just a visionary, he's a doer. He has the power to convert dreams into reality, making society a better place, not for just himself, but also for people around him. I am privileged and honored to have him with me today, the mentor, a corporate genius, and the driving force behind Jaffa Business System, the CEO of JBS, Mr. Waqarul Islam. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. How are you? बिल्कुल ठीक. बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन का. मैं सोचा था ये मेरे मुताल्लिक ही बोल रहे हैं. नहीं, बिल्कुल आपके मत. You deserve much more. Thank you, sir, for taking out time. It's a privilege to have you on the show. Thank you for having me. So I was looking at your profile and mashallah, you have achieved so much. So it was quite difficult for me to pinpoint few topics for discussion. But what I found common was that you have been an advocate of change and innovation. So coming from a society, Pakistani society, that is hesitant to change, and it's nearly impossible to break away from traditional norms. What shaped your mindset? So देखें, जब आप ह्यूमन माइंड मेरे नज़दीक सबसे अच्छा काम करता है जब वो कंस्ट्रेंट्स के अंदर हो. राइट. सो कंस्ट्रेंट से मुराद ये है कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, पैसे नहीं. इट्स अ कंस्ट्रेंट. राइट. आप गाड़ी लेना चाहते हैं, पैसा नहीं. इट्स अ कंस्ट्रेंट. राइट. आप कहीं पहुंचना चाहते हैं 1 घंटे में, लेकिन ट्रैफिक. Yeah. So all these are constraints. So when human mind comes under constraint, it works the best, right? So जिस तरह क्या हमारा यूथ था या यंगहुड और बचपन जैसे गुजरा, तो उसमें we lived in constraint, or our parents taught us to live with constraints, right? And they created enough constraint for us to start thinking and applying brain. And I think what training over the years built that thing. The other thing जो मेरा ख्याल में जिसने मुझे बहुत हेल्प किया है, वो मेरी माँ है. राइट. तो मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, कतन. यानी सिर्फ अपना नाम वो भी किसी ने सिखा दिया था तो लिख सकती थी. बट शी वॉज एन इनक्रेडिबल लेडी. अच्छा, और एक मैं सिर्फ मिसाल व्यूअर्स के लिए देता हूँ. वो जब हमारे यानी उनके बच्चों के बच्चे आने शुरू हुए दुनिया में, तो वो जब उनसे पूछते थे कि नानी या दादी को भाई क्या नाम रखें, तो कहते नाम ऐसा रखो जो किसी का ना हो, वो डिफरेंट हो. राइट. सो शी inculcated this, that if you want to progress in life, you got to be different. बहुत सारे लोग अगर अभी हम बाहर देखें तो चल रहे हैं,
उनमें से कोई एक दो लोग आप पिक करते हैं जो फ़र्क नज़र आते हैं, उन पे आपकी निगाह ठहर जाती है, या आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप महफ़िल में जाते हैं, आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं. सो शी टॉट अस द वैल्यू ऑफ बीइंग डिफरेंट, एंड फ्रॉम देयर यू कैन से you start thinking कि अच्छा what will stand out. So anything that happens in my life, or for that matter in my home, I always say, will it catch the attention, or is it the same as what everyone else is doing? Because if I do exactly what everyone else is doing, then I don't get noticed. Right? Notice वही लोग होते हैं दुनिया में जो फ़र्क होते हैं. Different. Right? So I think over a number of years and decades, एक somehow personality बनती गई, जिसमें लाशऊरी तौर पे मेरे ख्याल में मेरी माँ का बहुत हाथ है, because she would in everything she would, कोई काम करेंगी, शादी प्लान कर रही हैं, जिससे इसमें फ़र्क क्या होगा, you know, and she would come up with ideas कि अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं. Incredibly organized, you know, in her management skills. Again, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी. So you're giving the credit to your mother for this mindset. That is beautiful. Talking about change and innovation, many organizations nowadays find it difficult to adopt change. So they might have the resources, but they find it difficult to break away from the traditional norms. So what do you think? What is the role of leaders in such a scenario? देखिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, लेकिन काफ़ी डीप सवाल है ये. मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हमारा माशरा बीइंग डिफरेंट को सपोर्ट नहीं करता. Support भी नहीं करता. And I'll give you a few examples, right? And I'm saying it from my life, but viewers can check from their end as well, right? बच्चा पैदा होता है, चलने लगता है, अम्मा अब्बा कहते हैं वो करो जो मैं कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नहीं करना, राइट? उसके बाद वो स्कूल जाता है, वो स्कूल में भी टीचर यही कहती है, राइट? वो ये नहीं कहती है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी थिंकिंग नहीं डेवलप करे. कॉलेज जाता है, जो मैंने कहा है वही लिखो. यूनिवर्सिटी आता है, जो मैंने कहा है वही करोगे तो मैं नंबर दूंगा, वरना नहीं दूंगा, राइट? तो हमने एक रटाने वाली सोसाइटी क्रिएट करती. फिर वो नौकरी पे आ जाता है, नौकरी पे आ जाता है, बॉस कहता है वो करो जो मैं कह रहा हूँ, Vicious cycle. राइट? सो इट नेवर एंड्स. It never ends. एंड हेंस वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू क्वेश्चन, राइट? आप डिफरेंट होते जब हैं, जब आप क्वेश्चन कर सकें, जब आप डिफरेंट एंगल्स को इनकरेज करें. तो चूँकि हमारे घर में इस चीज़ को बड़ा इनकरेज किया जाता था. मेरे वालिद भी जब तक हयात थे, मैं काफ़ी यंग था जब उनकी डेथ हो गई, वो बड़ा इनकरेज करते थे डिबेट्स को घर के अंदर, contrary viewpoints, and sometimes very passionate viewpoints. You know, for example, religion and politics can become very emotional. हमारे घर में encourage किया जाता था कि यार आप बात करें, you know. So all of that helped me to understand the value of difference of opinion, right? Difference of opinion is a beautiful thing. उसको, because it allows your mind to open up in ways you can never imagine. Because मैं अगर आप मुझसे डिफर कर रहे हैं, so now I have learned another opinion or another perspective to my thinking, and then I can analyze whether the perspective is right or wrong and form an opinion. So I think वो एक पूरा जो ये vicious cycle है ना, जो आपने सवाल किया, जब तक हमारे यहाँ की organizations, और चूँकि ऑर्गेनाइजेशंस में मैं ज़्यादा, टीचर्स पे ज़ाहिर है बहुत जिम्मेदारी है, पेरेंट्स पे भी है. ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कि जो लोग CEOs बनते हैं वो उस प्रोसेस से ज़्यादातर गुजर के बने. तो एक बहुत सिंपल रूल है, जब तुम ग्रो कर रहे थे तुम्हें अपने बॉसेस की बड़ी सारी चीज़ें नहीं पसंद थी, राइट? तो अगर तुम्हें नहीं पसंद होंगी ना, तो तुम्हारे लोगों को भी नहीं पसंद होंगी, वो ना करो, ठीक है? एंड लर्न एंड इम्प्रूव, and you'll see the life changes. So very few things you need to do to create this critical thinking in the company, encourage people. डरे नहीं गलती करने से कुछ नहीं होता, राइट? मैंने एक जैक वेल्च की किताब है विनिंग, उसमें उसने बड़ा मज़े का एक जुमला, उसने कहा नो मिस्टेक इज़ फेटल, राइट?
you'll become either it will go away, the mistake, or you'll correct it. You'll correct it. तो don't worry about making mistakes. हम कोई फेल हो जाए उसको हम चपेड़े मार मार के उसका हशर बुरा कर देते हैं. So let people fail. Let people learn how to get up from failure. राइट उनको सपोर्ट ज़रूर करें जब वो गिरे हुए हों और उनको उठाने के लिए पर्सपेक्टिव दें, लेकिन गिरे हुए को मारे नहीं कि फेल क्यों हुए That's तो part वैसे of ही the गिरा learning हुआ. process. Yeah. So with innovation, now that we've talked about it, sustainability is also a buzzword that is used very frequently with it in corporate world. So what do you think? Does the two terms go hand in hand? Absolutely. अच्छा, और आज के दौर में तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है. मैं आपको अपनी दुनिया से मिसाल देता हूँ. जो लोग थोड़ा बहुत टेक को समझते हैं आजकल, तो यूथ बहुत अच्छा समझता है. तो अगर आप नोट करें, मैंने जब अपनी ज़िंदगी शुरू की थी और टेक की दुनिया में आया था, तो एक वो पर्सनल कंप्यूटर होता था जिसकी मेमोरी होती थी 640 किलोबाइट. 640 किलोबाइट, राइट. और ये बात सिर्फ 40 साल पुरानी है. कोई बहुत ऐसा आप नहीं कह सकते कि बहुत अरसा हो गया. उसके कई सालों बाद भी, शायद 25 साल पहले भी इसी तरह की कहानी थी, तो उससे थोड़ी बढ़ गई थी. अभी मैं कुछ दिनों पहले सिलिकॉन वैली में था, तो उधर मैं एक स्टार्टअप से मिला. वो 256 पेटाबाइट की चिप बना रहे हैं, राइट. इट वॉज माइंड बॉगलिंग टू मी कि यार एक बंदा जो 640 के से ज़िंदगी शुरू की, वो चिप के अंदर, अभी हम स्टोरेज की बात नहीं कर रहे, वो उस चिप के अंदर जो आपके फ़ोन के अंदर जाएगी शायद 256 पेटाबाइट होगी. ये जो भी आप कहते हैं 512 GB और 1 GB और वट एवर, इस तरह की बात है. सो इतनी ट्रांसफॉर्मेशन है. तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी का नहीं सोचेंगे तो आपको नहीं पता आप कल होंगे या नहीं होंगे. मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ. आपकी एजुकेशन में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी हेल्थ केयर में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ रहे हैं. अभी ये जो AI का ख़ास तौर से चेंज आ रहा है, आई डोंट थिंक वी हैव इवन अंडरस्टूड हाउ बिग इट इज़. बिकॉज इमेजिन यू आर वेयरिंग अ ग्लास, यू वेयरिंग ग्लासेस, और वो ग्लासेस जो हैं उससे आप गाना सुन सकते हैं, उससे आप नेविगेट कर सकते हैं, उससे आप बातें सुन कर सकते हैं, उससे आप YouTube खोल के आपका प्रोग्राम देख सकते हैं, राइट. यू कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम द ग्लासेस. रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम द ग्लासेस. कैन यू इमेजिन दिस? नाउ इट इज़ कमिंग, राइट, एंड सम ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इन देयर, राइट. सो ऑर्गेनाइजेशंस अगर प्रिपेयर नहीं होंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे. और प्रिपेयर होने के लिए अब चॉइस नहीं है. डूइंग द सेम थिंग दैट वी यूज्ड टू डू इन द 70s एंड द 80s एंड द 90s, इट्स डाउनराइट इडियोटिक, राइट. सो पीपल नीड टू मूव अवे फ्रॉम इट. सो पीपल आस्क मी, अच्छा क्या चीज़ तुम्हें परेशान करती है? तो मेरे लिए सबसे परेशानी की बात टेक में ख़ास तौर से चुका कि यार मुझे नहीं पता टेक्नोलॉजी कल क्या होगी. सो आई नीड टू एंटिसिपेट द टेक ऑफ टुमारो and make sure my organization is ready for it today. Only then I'll survive the tomorrow. And if I really want to thrive it, then I need to take actions so that when future comes, I'm not just ready for it, I'm hopefully ahead of the curve. Ahead of it. Right? So, you don't have a choice in today's world. But the change is massive. आप young बच्चे हो, आपके पिछले 10 सालों में आप देख लें कितनी change आ गई है. you'll be amazed. मैं तो 40 साल के सफ़र की बात कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों के केस में तो पिछले 10 साल में देख लें क्या चेंज आ गई है. एंड इफ़ यू थिंक you've seen enough, think again. Next 10 years are going to be very dramatically different. I agree. You're talking about 40 years. Even I have envisioned this drastic transformation. So talking about technology, what do you think are the important skill set for the youth to acquire now, especially to fit in an AI-driven future? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है. क्योंकि अगर आप नोट करें, अगेन हम चेंज की बात करें, आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले कोई बच्चा ग्रेजुएट करता था तो हम उससे क्या कहते थे कि किस तरफ जाओ, या बच्चा क्या सोच रहा होता था. तो आजकल
everyone goes towards computer science. Computer science. Right? But that's the in thing. Anything. You know what? It's no more the in thing. Right? Why? Because computer science जो ज़्यादातर काम करती है वो काम तो अब चिप कर देगी चिप कर देगी या AI कर AI कर देगा. रही है. ठीक है. तो now the skill which is becoming lot more important is back to engineering. You know, so whatever you are seeing around the world are engineering marvels. Right? कि वो engineering की वजह से इतनी पावरफुल चिप्स हो गई हैं कि अब वो काम कर सकती हैं जो पहले ह्यूमंस करते थे या स्किल चाहिए होती थी उसके लिए. आपके पूरे पूरे फंक्शंस ऑटोमेट हो रहे हैं और होते जाएंगे. सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई को का फाउंडर है और हेड है, यू नो उसका वो ये कहता है कि ये ऐप्स ख़त्म हो जाएंगी और जीपीटीज आ जाएंगी. So which means everyone will have their GPT, which means they will be making some manual things mundane, right? Because it will be taken over by these GPTs. You know, as an example. So अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या स्किल सेट देखना चाहिए, नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग. ये जो हमने स्कूलों में और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में रटाने का ड्रामा किया हुआ है और टीचर कहता है बस वो लिखो जो मैं कह रहा हूँ, सॉरी टू से मौलवी कहता है वो सुनो जो मैं कह रहा हूँ, यू नो वगैरह वगैरह, हैज़ टू एंड. अदरवाइज हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. यू नो ये कॉर्पोरेट्स में या कंपनीज़ में ये जो टिपिकल एक हमारा कल्चर है, बॉस कहेगा तो यस बॉस, अभी मैं कहूँ रात हो रही है तो वो आके कहेंगे यस सर अभी तो क्या खूबसूरत रात है. वो सिर्फ रात नहीं कहेंगे, उसमें खूबसूरती भी ऐड कर देंगे. ठीक है. सो क्रिटिकल थिंकिंग वेरी क्रिटिकल, very very critical skill, right? You got to look at ways to think in a way where you challenge, right? You ask what if questions. Second, subjects like philosophies, psychology, liberal arts in general is going to be extremely important, right, in the future. Engineering, surely, right? And some computer science as well. Some. Right? You know, not to say that computer science will go away, but it will not have the same kind of traction जो आज है. क्योंकि आज तो आप जीपीटी को कहें वो कोड भी कर देगा आपको. Right? Yeah. इससे तो लोग वो भी क्वेश्चंस पूछ के क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं. Exactly. ठीक है ना. तो it is about taking your skill set to the next level. Next level. एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिसेंटली रिपोर्ट आई है, and I hope I have the data correctly. So what they're saying is, I think 90 million, if I remember the number correctly, 90 million jobs will be made redundant because of AI. Because of right? But interestingly, close to 160 or thereabout, new jobs will be created. So the net increase in jobs is almost 70 to 80 million. Right? With the numbers बहुत exact याद नहीं, लेकिन तकरीबन इसी तरह की बॉल पार्क नंबर है. वो जॉब्स वो नहीं होंगी जो आज है. वो फ़र्क जॉब है. बिल्कुल. ठीक है. तो हमें एंटिसिपेट, सो जैसे आपने बात की थी ना कि फ्यूचर की और रेजिलियंस कैसे, सस्टेनेबल कैसे होते हैं, हर इंडिविजुअल को भी सोचना चाहिए कि मैं सस्टेनेबल कैसे होऊंगा. ठीक है. हमारे जैसे लोग या मेरी जनरेशन के लोग विद वेरी लिमिटेड स्किल सेट, हमने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी बड़ी सेट गुजारी हैं. यू कांट डू दैट, राइट? सो यूल हैव टू कंटिन्यूसली अपस्किल एंड क्रॉस स्किल योरसेल्फ. देयर इज़ नो अदर चॉइस. जैसे डॉक्टर्स करते हैं कि डॉक्टर्स के प्रोफेशन में यू गॉट टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ. इट्स एग्जैक्टली द सेम नाउ विद एवरी ह्यूमन बीइंग. You think you know everything today, possibly do, but tomorrow you may become redundant. Not a chance. Sir, you have been actively working to empower youth. Initiatives like Grad Nest show your commitment to that, how you're dedicated to nurture young talent. So what do you think, how important is youth development nowadays, especially when Pakistan is facing brain drain? And what role does leaders of nowadays can play in order to make them feel safer and hopeful about their future in Pakistan? तो देखिए, एक चीज़ तो देखने का, मुख्तलिफ चीज़ें देखने का तरीका है. मैं
ये नहीं देखता कि मैं पाकिस्तान को कैसे बदल दूं, क्योंकि मैंने वो रोल लिया नहीं अपने लिए, राइट. उसके लिए आपको या पॉलिटिक्स में जाएं या कहीं और चले जाएं, राइट. क्योंकि वो फिर आप कंट्री लेवल पे इंस्पायर करते हैं लोगों को टूवर्ड्स गिविंग होप और अपस्किलिंग योरसेल्फ वगैरह. हम क्या कर सकते हैं, राइट. तो एक तो ये ना कि हम दूसरे को ब्लेम करते रहें, लेकिन हम क्या कर सकते हैं एज कॉर्पोरेट लीडर्स, और हमारे डोमेन में जितने भी लोग हैं, और वो कोई भी हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं. हमारा काम है उनको राह दिखाएं, उनको ये दिखाएं कि वी गॉट टू अंडरस्टैंड 240 मिलियन लोग बाहर नहीं जा सकते, उन्होंने इधर ही रहना है, जो मर्जी कर लें इधर रहना है, राइट. 1 मिलियन बाहर चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 10 चला जाएगा. हमारी जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो अगले साल बराबर हो जाता है, फिर 240 पे. तो हम तो नेट इंक्रीज कर रहे हैं ना पॉपुलेशन. तो उन्होंने तो इधर ही रहना है. तो होपलेस होने से इलाज तो नहीं हो रहा. अच्छा, आप निकल भी गए, चलें मान लिया, आपके घर में तो लोग उधर ही हैं, वही है. तो डोंट यू केयर अबाउट देम. सो जो फ्यूचर ऑफ 99 और 98% ऑफ द पीपल इज हेयर इन दिस कंट्री, लाइक इट और नॉट, दे कांट गो आउट. दुनिया आपके लिए 240 मिलियन लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है. हमें इसी में उम्मीद ढूंढनी है, राइट. और ये हमारे जैसे लोगों का काम है. ये ना सोचें कि मैं मुल्क बदल दूंगा, क्योंकि वो आपका रोल नहीं है. लेकिन क्या मैं कॉर्पोरेट बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ, राइट. क्या मैं यंग बच्चों को जो हमारे यहाँ काम करते हैं, क्या उनको हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं. सो मेरे ख्याल में मेंटरिंग का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर्सपेक्टिव देने का रोल स्ट्रॉन्ग है. लेकिन द ओनली थिंग वन नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट, because youth is lot more exposed, lot more aware than what we were when we were growing up. तो उनसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी बात हाँ में हाँ मिलाएंगे. Let them challenge you, and then you share your perspective, and if it has solid facts and arguments, they'll listen to you, right? But go deep. जिधर आपने ये कहा ना आज के यूथ को ख़ास तौर से कि बस जो मैं कह रहा हूँ वो करो, आपने यूथ को अपने आप से एलियनेट कर दिया, राइट. एंड इन माय व्यू दैट इज़ पॉसिबली द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, कि हम कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं वो करो. इट वोंट वर्क, right. This youth is very different because they know things that we could have never imagined 20 years ago or 30 years ago. So they are so aware, everything is in your palm. ट्रू. ये तो है कि आजकल लर्निंग का जो है कि हम इफ़ वी आर ओल्डर, वी हैव मोर एक्सपीरियंस, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट दैट यू कैन लर्न फ्रॉम समवन हु इज़ यंगर देन यू. So this kind of mindset definitely is becoming. अभी भी मतलब मैं और ये भी अच्छा पॉइंट है. चंद दिनों पहले someone who's young but has a senior role, उसने कहा जी कस्टमर कहता है किसी बड़े को लेके आओ. जरा मार्क ज़करबर्ग की एज तो देख लें जब उसने फेसबुक बनाई थी, राइट. सेम विद स्टीव जॉब्स, सेम विद बिल गेट्स. अब किसी की भी देख लें, ओ भाई यंग लोगों ने आगे लेके जाना है. ये जो ड्रामा है कि मेरे से उम्र में छोटा है या तजर्बे में काम है, इसको क्या पता होगा. निकलें इस तरह की फजूल किस्म की सोच से. एक्सेप्ट दैट यूथ नोज मोर देन यू, right? You have more experience than them, surely. And that gives you the ability to share a different perspective. But awareness, you don't have it compared to the youth. I mean, accept it. Okay, talking about the youth, many youngsters would be interested कि how to stand out if recruiters के सामने, since you are part of the corporate world, so किस तरह stand out करें? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन stand out करने के लिए कोई आपको बहुत रॉकेट चीज़ें नहीं करनी. और इंटरेस्टिंगली हमारे मुल्क में चूँकि हम क्रिटिकल थिंकिंग को डिस्करेज करते हैं, हम बीइंग डिफरेंट इज़ नॉट लाइक्ड इन आवर कंपनी. अब थोड़ा सा फ़र्क हो जाए आप नोटिस हो जाते हैं. मैं आपको एक बड़े मज़े की मिसाल देता हूँ, राइट. सो आई few years ago I used to frequently go to Citizen Foundation School to talk to young kids, 9वीं क्लास के या 10th क्लास के वगैरह. So once I went to I think Balochistan to talk to young kids,
राइट. और जो बच्चे बैठे हुए थे उसमें पहली रो में एवरीवन हैड दिस चेयर जिसकी वो साइड पे होता है जिस पे आप बुक्स वगैरह रखते जी हैं. जी. राइट. तो सबकी बुक्स रखी हुई थी. एक बच्ची की बुक थी जिसने उसको बहुत खूबसूरत कवर चढ़ाया हुआ था. राइट. एंड ड्यूरिंग माई एंटायर टॉक अबाउट एन आवर और सो आई केप्ट नोटिसिंग दैट गर्ल That. बिकॉज शी वॉज डिफरेंट. बाकी सारे लोगों की वही, किसी की गंदी थी, किसी की कवरलेस थी वगैरह. शी हैड अ ब्यूटिफुल कवर एंड आई कुड टेल दिस यंग गर्ल इज डिफरेंट. सो जब टॉक वॉक ख़त्म हो गई आई वेंट टू द टीचर. मैं कहता मुझे उस बच्ची के मुतालिक बताएं. कहती है वो स्कूल की टॉपर है. अच्छा. वो फ़र्क बच्ची थी. You know, I have never interacted with that girl. I never knew who she is. I did not meet her even after my session. But I knew she is different and I'm sure she is doing a lot better. So, छोटी सी चीज़ थी ना, कोई भी कवर चढ़ा सकता था. तो यार उसने चढ़ा लिया ताकि मैं नज़र आऊँ. तो ये ना सोचे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ करके आप नज़र आएंगे. आप छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क हो जाते हैं और वो फ़र्क नोटिस होता है. You know, as I said, only those who get noticed progress in life, and you need to see how can you differentiate from the crowd. अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं. और अगेन जस्ट फॉर द यूथ समझने के लिए, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आपने कभी नोट किया है 25, 30, 40 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सब जानते हैं किसी भी जगह पे. अच्छा, वो अपनी पब्लिसिटी भी नहीं कर रहा होता ऐसे, लेकिन उसमें कोई ना कोई स्किल होती है. जो यूनिवर्सिटी में टॉप किया, ठीक है, कोई ऑथर है, किताबें लिख रहा है या आर्टिकल्स लिख रहा है, गाने अच्छे गाता है, लतीफ़े अच्छे सुनाता है, मिमिक अच्छी करता है, राइट, बदमाश है, राइट, इन अ नेगेटिव. दे गेट नोटिस्ड एंड आउट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन एनी यूनिवर्सिटी 20, 30, 40 of them would be noticeable. Why? Because they are different, right? So every individual need to find how can I be different, right? And there's small things, you know, and those get noticed. Maybe that can help them shape their personality or the way they carry out themselves. Yeah. Okay. Just think different. मैं इसी में फ़र्क कैसे कर सकता हूँ? वही चीज़ जो आप कर रहे हैं उसको फ़र्क तरीके से कर लें जो दूसरे नहीं कर रहे. Okay. Okay. You will get noticed. Okay. So you made your way up through from the very humble beginning, and then you have seen the success of corporate world as well. So now that you have been through a journey, do you think there are steps that can be skipped to your way to success? देखिए, is there short term? So there is no shortcut. There's right? no shortcut. You got to follow a process. ठीक है? Can you expedite the process? The answer is yes. So it may have taken me 14 years to get into leadership position. I'm sure the youth of today can get there in 7, 8 years. But like it or not, you got to go through those 7, 8 years of rigor, right? And be patient. There is no other way. So you got to follow the process of climbing the ladder. ये तो हो सकता है कि आपने लैडर करनी है, आप एक लैडर स्किप करके दूसरे पे चले गए, पॉसिबल, राइट. ये नहीं हो सकता कि आप नीचे वाली लैडर से ऊपर डायरेक्ट ओवरनाइट ऊपर, ये नहीं हो सकता. ठीक है, आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है. बजाय 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के शायद आप 30 चढ़े, लेकिन ऊपर जाने के लिए वो सीढ़ियाँ चढ़नी है. एंड अगेन टू वो 30 चढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होना पड़ेगा, डिफरेंट हो और सब कुछ करने के बाद भी थोड़ा सब्र भी करें, पेशेंस. ठीक है. ये जो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन मोबाइल and the surfing and social media, it has made us very impatient. True. Right? As a personality. हम कोई वीडियो 30 सेकंड से ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते. Attention span पहले हम भी कम हो गया. 3-3 घंटे की फिल्में देख लेते थे, राइट. तो अब लोग कहें भाई इतना टाइम नहीं है हम बैठे. So it has taken the patience away. So I think that's something people, I would advise the youth to practice. हर चीज़ करें लेकिन थोड़ा सब्र भी करें. हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो वक्त अगर आप सब चीज़ें ठीक करें आ जाएगा, जल्दी आएगा. लेकिन ये ना समझें कि कल आ जाएगा. कल सुबह उठेंगे और
True. Actually, you've been juggling between so many multiple various fields. So multitasking is something that you do effortlessly. अगर कोई भी अच्छी productive activity हो रही है, we find you there present. So is this multitasking an innate hidden talent in you, or It's you not can a cultivate? no, I don't think it's a talent. It is something that happens, of course, or you learn over time. So the key thing I keep thinking all the time: how do I free up my time? Right. मैं अपने टाइम को कैसे फ्री करूं ताकि मैं और कोई नई चीज़ शुरू कर दूं या और कोई नया ड्रामा कर लें, राइट? अच्छा, उसके लिए क्या होता है, तो एक दफ़ा मैं एक मेरे कॉलीग होते थे इस्लामाबाद जब मैं रहता था, उनके घर गया, एंड द पर्सन आई एम टॉकिंग टू रियली प्रोग्रेस इन लाइफ, माशाल्लाह टुडे एज वेल डूइंग वेल. सो हिज फादर केम टू मी एंड ही सेड, वकार साहब, आपको पता नहीं आप हमें कहाँ से कहाँ ले गए, राइट? बिकॉज सो आई टोल्ड हिम, प्लीज़ ये ना कहें, मैं नहीं लेके गया, आपका बच्चा मुझे ऊपर लेके गया. You know, because he was doing so was doing well so well. that I was getting the glory, Hmm. right? कि यार ये leadership है, but it is always the team. So if you learn to create teams, if you learn to delegate, if you learn to let go of the power, right, you will find time, because your team will take the time away from you. You know, your task away from you, that will free up your time. So I am always a very strong believer of creating teams and empowered team. You know, ये नहीं हो सकता कि मैंने आपको एक सीनियर पोजीशन के लिए हायर किया, मैं आपको माइक्रो मैनेज कर रहा हूँ. देन आई एम यू नो, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ जो आपको मैनेज करना है, और आपको भी नहीं काम करने दे रहा, तो यू सफ़र ऑन बोथ काम. बट इमेजिन इफ आई हायर यू एंड आई से, you know, you are free to do within the confines जो भी corporate के होते हैं, you decide, right? And if you're good, you will start making decisions, you will fall, and that's where I'll come and make sure you get up, and you will learn. So the more teams you create, the more power you let go. ठीक है, इसलिए मैं एक और चीज़, ये सेंट्रलाइज पावर एक और बहुत वाइस है हमारे माशरे में. हर कोई ना सेठ बनना चाहता है, ठीक है? तो यू नो, मुल्क के सेठ हैं, कंपनियों के सेठ हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो कंपनी वाकई सेठ की है या नहीं है, राइट? उस सेठों के नीचे सेठ हैं, right? क्योंकि उसको पावर चाहिए, वो पावर छोड़ना ही नहीं चाहता. जब आप डेलीगेट करते हैं तो आप पावर को लेट गो करते हैं. जितना आप पावर को लेट गो करेंगे, आपका टाइम बचेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्केल करेगी, बिकॉज आपकी लिमिटेशन है. यू कैन ओनली डू दिस मच, राइट? सो इफ यू से आई कीप ऑल द पावर विद मी, देन you will never be able to scale, right, beyond the natural organic growth. इसलिए आप देखें जितने भी दुनिया भर में सिस्टम्स बनते हैं, उधर एम्पावर्ड होते हैं लोग, सिस्टम के थ्रू एम्पावर्ड होते हैं. जो फैसला अगर आपने करना है और आप मेरे नीचे, एंड इफ़ यू कम टू मी टू मेक दोज डिसीजन, यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब, बिकॉज इट्स योर जॉब टू मेक अ डिसीजन एंड लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज, गुड और बैड. Right? But if you push the decision upward to me, and I do something because I like to, or because you are too scared to make that decision, and you need a shoulder to get the decision done, then there is a problem. You don't grow, I don't grow. You know, so if you help your team grow, you will grow, and you'll have more time to do more things. So giving jobs to your team and then having more time. Okay. So being a leadership, that you have played this role for so long, and you have been very supportive of entrepreneurship because you took over ENA and you stood by it. So what elements do you see when you take certain decisions to parent certain companies, or you when you support entrepreneurship? What makes you take such decisions that this business will flourish, or this should be acquired? So underlying देखें, underlying मेरी philosophy क्या है? इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, आप
जो बिजनेसेस हैं हमारे ज़्यादातर जो प्रॉपर बिजनेसेस हैं, मैं ये फ्लाई बाय नाइट टाइप ऑपरेशंस को बिजनेस नहीं समझता कि उसको पैसे खिला के आपने बड़ा काम ले लिया, पैसे बना लिए, वो बिजनेस नहीं है, राइट। जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो अगर आप गिनना शुरू करें ना, 50 फैमिलीज होंगी जो डोमिनेट करती हैं, 100 होंगी शायद, ठीक है। 240 मिलियन मुल्क में आपको हज़ारों में एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो स्केल कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स तो हैं, एक ठेला चला रहा है वो भी एंटरप्रेन्योर है, सब्जी बेच रहा है वो भी एंटरप्रेन्योर है, पंक्चर लगा रहा है वो भी एंटरप्रेन्योर है, वो सब एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन वो स्केल नहीं कर रहे। तो अगर हम अपने तौर पे, जैसे मैंने कहा कि मुझे इसकी परेशानी नहीं है कि मैं पाकिस्तान नहीं चेंज कर पाऊँगा, लेकिन मुझे इसकी परेशानी ज़रूर है कि मैं अपनी दुनिया में कैसे चेंज ला सकता हूँ, जो भी मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। अंडरलाइंग थॉट प्रोसेस किसी भी स्टार्टअप को में इन्वेस्ट करने का या एक्वायर करने का ये है कि इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए जो स्केल करें, बड़े एंटरप्रेन्योर। सो इमेजिन इफ़ वी हैव 100 और 500, मुझे नहीं पता कितने फैमिलीज़ हैं या बिजनेसेस हैं जो डोमिनेट करते हैं। मैं बिजनेसेस को, ये फ्लाई बाय नाइट टाइप लोगों को मैं बिजनेस नहीं समझता। पैसे होंगे उनके पास बहुत, लेकिन वो दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स, राइट। बिजनेस वो है जो इंस्टीट्यूशंस हैं। एंग्रो इज एन इंस्टीट्यूशन, राइट। हबीब बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, and you can name so many other, right? But behind them there are those whatever number, 100 families, 500 families, but imagine if we can create 5,000 of them, तो हम अपने तौर पे क्या कर रहे हैं? तो अंडरलाइंग थॉट ये है कि हम स्टार्टअप्स को एक्वायर करें, नए एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करें और उनको हेल्प करें कंपनी स्केल करने में, जितनी ज़्यादा भी कर सकें जब तक अल्लाह ने सेहत ज़िंदगी दी है, और ईमानदारी से करें, सिंसियरिटी से करें और सबका फ़ायदा देखें। तो एक तो ये प्रीएम्बल था। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फाउंडर को देखता हूँ, आइडिया से भी ज़्यादा। अच्छा, राइट, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में देखा है कि बुरे से बुरा आइडिया भी बिक जाता है, ठीक है, और अच्छे से अच्छा आइडिया फेल हो जाता है। राइट, तो वो फाउंडर की वजह से। सो माय फर्स्ट थिंग इज़ द फाउंडर। उसको चलाएगा कौन, उसमें कितना दम है, कितना पैशन है, कितना हंगर है, वो एक दफ़ा अगर मैं असेस कर लूँ, फिर मैं देखता हूँ आइडिया कैसा है। So idea to me is a second thing, not the first thing. And then I look at the idea and say future relevant है नहीं है, ये मेरे लिए बहुत important criteria है। जैसे मैंने कहा कि टेक की दुनिया में अगर कोई बहुत अच्छा आइडिया है और कल ख़त्म हो जाएगा, आज के लिए बहुत अच्छा है, I will not invest. Because I want to invest for tomorrow. And day after. Right. So when ENA, I met Amir Salman, जो ENA के CEO हैं, and interestingly I met him for something else actually. He came to me for a job and I told him नौकरी छोकरी कब तक करते रहोगे यार, कोई अपना काम करो। तो वो जॉन एलिया ने कहा था ना कि नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो काम करो यार, इम्पैक्ट डालो। So he couldn't believe what I'm saying and I said go back, do some work. I liked the guy. I thought his value system matches with mine, right, and the kind of people I like to get associated with, and the idea is great because they work on the energy side, and massive changes happening in the energy side as we are seeing. I was in Silicon Valley a few weeks ago, as I said, और वहाँ पर वो वेमो एक ऐप है, उससे आप गाड़ी बुला लें, ड्राइवर के बगैर गाड़ी आ जाती है, दरवाज़ा खोलती है, आप बैठते हैं, वो जहाँ मर्जी ले जाएगी आपको। सो इट्स ऑल ऑल्टरनेट एनर्जी जिस पे वो गाड़ी चल रही है। So the moment he talked about alternate energy and IoT, I thought with the value system matching, I can see the hunger, I can see the excitement of this journey, which he didn't think about before meeting me. I thought I can make an impact, right? So that was my thought process while making a decision. Founder set है और idea
solid है. Solid. You know, alternate energy कहीं नहीं जा रही. Future के लिए. कहीं नहीं जा रही. So this company is for the future. For So the I future. invested, and alhamdulillah, they've done a great job. Okay. Sir, now I have a fun segment for you called Mythbuster, and in which I have generalized statements from the corporate world, and you have to label them whether they are a myth or a fact. Are you ready? Okay. So the first statement is remote work decreases productivity. It's a myth. It's a myth. Okay. Short-term gains usually mean long-term loss. Yes and no. That's true and not true. Sometimes they lead you to long-term gains as well. But sometimes, the key is, any corporate leader, and I keep saying it to my people, right? Okay, you got to have your one eye on today, this month, this week, this quarter, this year, right? But the second eye needs to be on, 60th month, which is 5 years down. 5 the road, years now. right? If you just have one eye on or both the eyes on the short term, you will miss the long term, right? True. And you will suffer. But if you conversely, if you have eye only on the long term, while you don't care about the short term, you miss the short term. So there will be no long term, right? So the key is how to balance between the two. Yeah, क्योंकि आज मेरा किचन चलना है, उसके लिए मुझे रोटी चाहिए, राइट? रोटी के लिए पैसा चाहिए, और 5 साल बाद भी चलना है, और ज़्यादा खर्चे के साथ चलना है, तो मुझे ग्रो भी करना है. तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. So I don't think it's either true or myth. Okay. Perfect work-life balance is unachievable. It's a good one. नहीं, अचीवेबल तो है. So it's a myth, right? But yeah, sometimes it becomes tough. You need to work hard for it. But it is still a myth कि बिल्कुल वो अचीव ही नहीं हो सकता. तो ये भी ठीक नहीं है. ठीक. Leaders are born, not made. Myth. Myth. They're made. Under. They are born, but they can be made. Working long hours always lead to greater output. Nonsense. Myth. Absolute myth. Okay. Right. Social media doesn't get long-term serious business. Myth. So you think that? I do believe. I mean, the world is working through social media these days. It's a reality. Accept it. There's no point to say social media कुछ नहीं कर सकता. यार, आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप नोट करें ना, सोशल मीडिया ने क्या चेंजेस ले आया है, यू विल बी शॉक्ड. हमारे बिहेवियर्स बदल गए हैं, हमारे बिजनेस मॉडल्स बदल गए हैं, हमारे बात करने का अंदाज फ़र्क है. सो all of this has happened because of the connected world that we are in. And social media is now an integral part of it. So yeah, sure. Thank you so much, sir. It was a pleasure having you. I hope you had a good time. Yeah, very good. Thank you so much. Enjoyed it. Well done. Thank you so much. That brings us to the end of today's exciting episode. I hope the contagious, delightful personality that Sarvakar had, you also could feel it across the screen. Until next time, if you enjoyed the episode, please subscribe to our channel, give a thumbs up, and for further energy, technology, and innovation related discussions, stay tuned. Allah Hafiz.